guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to discuss about the electricity. So let me discuss about electricity. So what is an electricity? So electricity it is a branch of physics in which we will discuss about the charge and properties of charge and flow of charge. Okay. So first of all, what is charge? So charge, आवेश क्या है? What is an electric charge? So this is a conducting wire in which electrons are flowing. These are electrons. Okay, so here number of electrons are n. So we can say that the continuous flow of the electrons in a conducting wire is called charge. Okay, किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंटिन्यूअस फ्लो हो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है. ओके, सो वी कैन से दैट द कंटिन्यूअस फ्लो of electrons is called electric charge. Okay, so it is denoted by Q. Okay, and Q equals to plus minus n. Here 1 electron, 2 electron, 3 electron are, so there are present n number of electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में? n इलेक्ट्रॉन है. अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो प्लस माइनस 1e, बिकॉज चार्ज इन टू टाइप्स. ओके, प्लस माइनस. ओके, सो 1e, 2e, 3. सो हियर there are present n number of electrons, so charge is plus minus ne. Okay, and its unit is coulomb, denoted by a symbol C. Okay, so we can say that the continuous flow of the electrons in a conducting wire is called electric charge. Okay, and here this is a conducting wire where present n number of electrons. So Q equals to plus minus ne, where E is equals to minimum charge of the electron and its value is minus 1.6 into 10 power minus electron 19 coulomb. Okay, this is the minimum value of the charge of an electron, minus 1.6 into 10 power minus 19. Is it clear? So now fine, we will discuss about the nature of charge. So nature of charge. So excessness of electrons, it means negative charge, and lowerness of electron, it means positive charge. एक्सेसनेस, इसका मतलब है अधिकता है, और किसकी? इलेक्ट्रॉन की. और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. तो अब थोड़ी देर के लिए देखिए, किसी पर नेगेटिव की एक्सेसनेस है, मतलब ऋण जैसे बोले तो लोन, बैंक लोन में ऊपर बाहर लिखा रहता है, बैंक के बाहर कार ऋण, गृह ऋण. ओके, सो ऋण की अधिकता है, माइनस की एक्सेसनेस है. ओके, नेगेटिव की. सो जब एक्सेसनेस होगी तो कैसा चार्ज होगा? माइनस का. यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऋण का बोझ ज्यादा हो जाए, लोन ज्यादा हो जाए, तो वो कैसा होगा? ऋण ही होगा. सो नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड लोअरनेस, अगर वही अब नेगेटिव धीरे धीरे कम होने लगे तो इंसान क्या हो जाएगा? धनी होने लगेगा. इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज. सो लोअरनेस ऑफ द electrons, it means positive charge. So in this way we will discuss about the nature of charge. So here just we take an example. A conductor contains 500 electrons in excess amount.
calculate magnitude and nature of charge. So number of electrons are 500 and we know that value of small e equals to minus 10 power minus 19 coulomb. So Q equals to Ne, and this excessness, it represents then how much, which type of charge? Negative charge. This is the nature of charge. So Ne 500 into magnitude of E 1.6 into 10 power minus 19. This Q equals to 800 into 10 power minus 19 coulomb and negatively charged because here excessness of the electron. Okay, so this is an electric charge, and you know that properties of the charge. Okay, so properties of the charge. So charge is कंजर्वेटिव. कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है इन नेचर. चार्ज कंजर्वेटिव होता है, मतलब कहने का अगर किसी भी जैसे ये कोई ए स्फीयर है और इसमें 100 कूलम चार्ज है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो इसमें 30 कूलम गया तो इसमें कितना होगा? 70 कूलम. मीन्स जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा. 30 और 70 अगर ऐड कर दें तो टोटल कितना रहेगा? 100 ही. इट मीन्स QA जितना था QB और QC जितना ये अन्य में अदर बॉडीज में स्प्रे किया गया, गिवन किया गया, तो वो टोटल उतना ही रहेगा, ना ही इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा. इट मीन्स चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर. ओके, सेकंड पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड. It means it is integral multiple. Not in fraction form. चार्ज कैसा होता है? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है. जैसे हम आप किसी भी पर्सन की काउंटिंग की जाती है, जैसे क्लासरूम में हर तरह के स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बट एक क्लासरूम में है तो जब उनकी काउंटिंग करेंगे तो कंप्लीटली काउंट करते हैं 1 2 3 4. किसी को ऐसा नहीं करते कि अगर साइज में छोटा है तो 3.5 कर दें, 0.5 में काउंटिंग कर लें, ऐसा तो नहीं करते. सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड जस्ट लाइक इन फ्रैक्शन फॉर्म बट इट इज इन इंटीग्रल फॉर्म. मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, प्लस माइनस हो सकता है बट इंटीग्रल मल्टीपल में होता है 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर वैल्यू. ओके, फ्रैक्शन नहीं हो गया कि 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, ऐसे नहीं हो गया. ये मतलब है क्वांटाइजेशन का. सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड. एंड थर्ड वन इज इट अराइजेज थ्रू द फ्रिक्शन. चार्ज किससे अराइज होता है? फ्रिक्शन से अराइज होता है. सो दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज. Charge is conservative in nature. Second one, charge is quantized. Quantized means it is integral multiple form, not in fraction form. And third one is it arises through the friction. And its example is lightning. ये जो लाइटनिंग देते हैं, रेन होती है जब, तो उस समय जब लाइटनिंग होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस होती है, वो फ्रिक्शन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है. सो इट अराइजेस थ्रू द फ्रिक्शन एंड इसका एग्जांपल है लाइटनिंग. ओके, एंड नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? Electric current. So we can say that the rate of flow of charge is called electric current. The rate of flow of charge
okay, is called electric current. It's denoted by I and its formula is Q by T. टाइम को रेट बोलते हैं, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड इन अ कंडक्टर. ओके, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर इज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ऐसा भी कह सकते हैं. और टाइम को आप रेट भी बोल सकते हैं. सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और द रेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड an electric current, and we can also say that the flow of charge in per second is called electric current. It's denoted by I, and I is equals to Q by T. Okay, and its unit is ampere. Also its unit is coulomb per second. Okay, but according to its the scientist name, its name is एम्पियर. सो इसका यूनिट कूलम पर सेकंड भी है और एम्पियर भी है, ऐसे ए से डिनोट किया जाएगा. ओके, एंड करंट मेजरमेंट किससे होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है करंट? स्केलर क्वांटिटी है. इट मेजर्ड बाय अ मीटर. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट का मेजरमेंट करते हैं. आप घरों में देखते हैं जहाँ घर के बाहर मेन स्विच लगा होता है, उसमें दो तरीके की वाचें होती हैं. एमीटर होता है एंड अनदर वन इज वोल्ट मीटर. उससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे. बट अमीटर जो होता है वो करंट का मेजरमेंट करता है. ओके, सो दिस करंट मेजर्ड बाय द अमीटर. ओके, सो इट्स फॉर्मूला इज here I equals to Q by T. According to this, Q equals to IT, and we know that Q equals to NE. We discussed about this in the definition of charge. So by both equation first and second, by equation first and second, Q equals to NE equals to IT. ओके, अब इसके अकॉर्डिंग कैसे डिस्कशन होगा? तो इसमें एक क्वेश्चन जनरली डिस्कस किया जाता है. सो इफ 1 एम्पियर करंट is flowing within 1 second, then how many electrons will emit? Okay, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट का फ्लो कितनी देर तक हो? 1 सेकेंड तक हो, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे? I की वैल्यू है 1 एम्पियर, टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस करना है, कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ ई आपको पता है. ओके, सो वी विल यूजिंग NE equals to IT. It means N equals to IT upon E. So N की वैल्यू आ जाएगी 1 into 1 upon 1.6 into 10 power minus 19. ये -19 ऊपर ले जाइए और इससे डेसिमल इंक्रीज कर दीजिए, तो 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? जनरली आप इसको रिमेंबर रखिएगा. सो इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग विद इन 1 सेकेंड इन अ वायर, देन 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट. इतने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. ओके, सो नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट, a circuit in which attached
an electric bulb and a battery, a key and a meter. Okay, current flow from positive to negative in this way. ओके, ये स्विच है जो हमारे घरों में यूज होता है, ऑन ऑफ करते हैं, अगर डॉट लगी है तो इसका मतलब स्विच ऑन है। ओके, ये एमीटर है, करंट के फ्लो को मेजर करता है, बताता है, अभी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब ये इसकी ब्राइटनेस होगी दिखाएगा तो ये पता चलेगा कि सर्किट में करंट का फ्लो, और है बैटरी में यहाँ से फ्लो ऑफ करंट होगी इस तरीके से। शो अ सर्किट इन विच अटैच्ड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, की एंड अ बैटरी, दैट्स नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, so this is an electric circuit. And now we are going to discuss about the electric potential and potential difference. What is electric potential and potential difference? So देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। The amount of work done to carrying any charge from infinite to electric field. This is a point where present electric field, okay, is called electric potential. Real definition इसकी ये है, जब सीनियर क्लासेस में इसकी और भी एक्सप्लेनेशन बेहतर से करा गया है, बट यहाँ पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ये वोल्टेज है, जैसे किसी पावर हाउस से आपके घरों में सप्लाई दी जाना, तो वो पावर हाउस वाला पॉइंट हमने क्या मान लिया, इनफाइनाइट पॉइंट। ओके, सो व्हेन एवर एनी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट वेयर प्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, so the amount of work done to carrying any charge is called electric potential, or simply we can say that the ratio of work done to carrying a charge and magnitude of charge, electric charge, is called electric potential. Simply V equals to W by Q होता है, तो W और Q यानी W वर्क डन है और Q चार्ज है, इनका रेशियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, या सिंपली कह सकते हैं वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप तीनों तरीके से ऐसे इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन एनी चार्ज कैरिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, then work done to carrying any charge in per unit charge is called electric potential, or the ratio of work done to carrying any charge and the magnitude of charge is called potential or electric potential. Okay, V equals to W by Q. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या दूसरा यूनिट इसको हम वोल्ट बोलते हैं। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका मेजरमेंट किससे होता है, इट मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इससे मेजरमेंट किया जाता है, वोल्ट मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। सो what is an electric potential? So electric potential is the work done in per unit charge. Okay, electric potential is work done in per unit charge is called electric potential. Okay, now
we will discuss the symbol which are used in the electric circuit. Okay, and just we look electric potential difference. Potential difference, it is also the potential between 2 points. Okay, means potential difference is equals to VA minus VB इक्वल्स टू W बाई Q। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को सर्कुलेट करने में जो वर्क डन होता है। अब देखिएगा, जैसे आप स्विच है और फैन है, इन दोनों के बीच में, ओके, स्विच को ऑन किया, फैन रन करने लगा, मींस यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, सो वर्क डन टू कैरिंग एनी चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, वर्क डन टू कैरिंग एनी चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और बाकी सिमिलर वही है, यूनिट सिमिलर वही, जूल पर कूलम और वोल्ट एंड स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और मेजरमेंट इसका उसी से होता है, वोल्ट मीटर से। सो नाउ द सिंबल्स which used in the electric circuit, so name and symbol। इलेक्ट्रिक सेल ये इस तरीके से होता है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बैटरी, इसमें मोर देन 1 होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सेल, कई सेलों का ये कॉम्बिनेशन होता है। सो ये इलेक्ट्रिक बैटरी हो जाएगी। ये होती है ओपन की, इसको हम बोलते हैं क्लोज की। ये जो होता है इस तरीके से ज्वाइंट वायर होता है, और अगर यही इस तरीके से हो तो ये हो जाएगा क्रॉस वायर। ओके, अगर इस तरीके से अभी हमने यूज किया था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरीके से, आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड रियोस्टेट का सिंबल होता है RH, इस तरीके से होता है, और ये इस तरीके से कट होता है RH। ओके, रियोस्टेट। सो दीज आर द सिंबल्स व्हिच यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारे यूज होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, electric resistance. So according to Ohm's, when all the physical state like pressure, temperature, volume, these are the physical state, okay, ये unchanged रहे, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें कोई चेंजमेंट ना हो, तब के लिए बताया गया। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, whenever all the physical state like pressure, volume and temperature are remains constant, in that situation potential is directly proportional to the current flowing in the wire. Okay, V directly proportional to I. Okay, just remember again, when all the physical state like pressure, temperature, volume or remains constant or unchanged, in that situation potential in the circuit is directly proportional to the electric current whatever be flowing in the circuit. So V proportional I, so V equals to R into I. R is constant and it is also known as, also called electric resistance. Okay, so according to this, V by I equals to R equals to constant, ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग सिंपली देखिएगा, रेजिस्टेंस, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं।
और इसका सिंबल अभी हमने बनाया, कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके के सिंबल से। तो इसका देखिएगा यूनिट क्या हो जाएगा, V का वोल्ट और करंट का एम्पियर, सो वोल्ट पर एम्पियर, या अकॉर्डिंग टू इस साइंटिस्ट नेम ओम्स लॉ, इट्स यूनिट इज ओम and denoted by this symbol ohm. Okay, is it clear? So this is an electric resistance. And now let me discuss about 1 ohm. 1 ohm देखिएगा, ये 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर जैसे इनकी डेफिनेशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। देखिएगा 1 ओम हम इससे डिस्कस करेंगे, R = V अपॉन I। फैन वोल्टेज कितना हो, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, और करंट कितनी हो, 1 एम्पियर, सो 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 1, और ये ओम। ओके, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम? फैन 1 volt voltage in a circuit and current in the circuit is 1 ampere, then the resistance of the circuit will be 1 ohm. If shortcut ऐसे बोल सकते हैं, if 1 ampere current is flowing in a circuit or in a wire or in a conducting wire and potential difference or voltage developed is 1 volt, then the resistance of the wire will be 1 ohm. Okay, so ये हो जाएगा 1 ohm. Okay, R = 1 volt upon 1 ampere, that is 1 ohm. In the same way अगर आप डिनोट कर रहे हैं 1 volt, तो देखिएगा हमने क्या डिस्कस किया था, V = W/Q। तो V = W कितना हो, 1 जूल, और Q कितना हो, 1 कूलम। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 जूल पर कूलम को हम वोल्ट लिखते हैं। So what is 1 volt? If 1 coulomb charge circulate in a wire in which work done is formed 1 joule, that's potential, that's voltage will be 1 volt. Okay, आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, if 1 coulomb charge carrying from infinite to electric field in which work done is 1 joule, that's potential will be 1 volt. In the same way 1 एम्पियर क्या होगा, I = Q/T। सो Q की वैल्यू 1 कूलम एंड T की वैल्यू 1 सेकेंड, सो इसकी वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। ओके, सो इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग विद इन 1 सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर, ओके, दैट्स करंट विल बी 1 एम्पियर। इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा, सिंपली हमने फॉर्मूले से निकाला है कि इफ 1 कूलम, क्योंकि वे जगह 1 पुट कर दें और इसकी जगह 1 आ जाएगा। इट मीन्स इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग विद इन 1 सेकेंड इन अ सर्किट और इन अ वायर, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। अब इसकी अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो फिलहाल ये जान लीजिए कि हमने इसके बारे में कभी डिस्कस किया था। 1 एम्पियर ये फंडामेंटल यूनिट्स में आता है। सो दीज आर 2 पैरेलल वायर इन विच I1 एंड I2 करेंट्स, और इन्हीं की वैल्यू हमें 1 एम्पियर प्रूव करनी है। तो इनकी जो लेंथ हो 1 मीटर हो, इनके बीच का जो गैप हो वो 1 मीटर हो, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा हो वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो। सिंपली क्या बोलेंगे, 2 conducting parallel wire whose length is 1 meter placed 1 meter apart, okay, and force between them is 2 × 10⁻⁷ Newton, then 1 ampere current will flow in the wires. Okay, अगर ये लेंथ जो है कंडक्टिंग और पैरेलल वायर हैं, इनकी कितनी हो, 1 मीटर हो, इनके बीच का गैप जो हो 1 मीटर हो, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो इतने न्यूटन हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इनमें जो करंट का फ्लो होगा वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ओके, ये फॉर्मूला निकाला गया है
F equals to mu naught upon 2 pi in 2 into 10 power minus 7 I1 I2 L upon R. This is the formula for magnetic force. Okay, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि फोर्स की वैल्यू होती है। इस तरीके से 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन सॉल्व किया गया है, स्टैंडर्ड है। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर। सो नाउ what factor which affect the electric resistance of any conducting wire? So let factor affecting, okay, so this is a conducting wire whose length is L and radius is R. This is radius R or its area is pi R square. So resistance of the wire directly proportional to the length and inversely proportional to the area. Okay, so by equation first and second, R proportional L upon A, so R equals to rho into L upon A, and rho is a constant called resistivity. ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में आया है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टिविटी। ओके, सो लेट अ वायर हुज लेंथ इज L एंड एरिया इज A, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल A and its resistance is capital R. So resistance is directly proportional to the length, R proportional L, and inversely proportional to the cross sectional area, R inversely proportional A. So by equation first and second, R proportional L by A, so R equals to rho into L by A, where rho is constant and this constant is also called resistivity. Okay, so according to this, what is resistivity? So resistivity, R equals to rho into L upon A, so rho equals to R into A upon L. Okay, its unit is ohm into meter square upon meter, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, सो क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। आप शॉर्टकट में इसको ओम मीटर लिख सकते हैं ऐसे। ओके, एंड रेजिस्टिविटी इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। ओके, अगर सिंपली ऐसे बोला जाए किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें, एरिया को शॉर्ट कर दें, तो इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज आर प्रोपोर्शनल एल। अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, बट रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे आयरन है तो आयरन के वायर को आप कितना भी लंबा खींच दें, कितना भी छोटा कर दें, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। कॉपर का वायर है तो कॉपर का वायर कितना भी छोटा करें, बड़ा करें, उसकी रेजिस्टिविटी अनचेंज्ड रहेगी। ओके, रेजिस्टेंस चेंज होगा, ओके, लेंथ और एरिया चेंज होने से। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। ओके, ये उसके लेंथ और एरिया या रेडियस चेंज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी। एंड वे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, द रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रिवर्स। The reciprocal value of resistivity is called conductivity. Sigma equals to 1 by rho, and you know that rho equals to R into A by L. So
सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू ए बाई एल, सो सिग्मा इक्वल टू एल अपॉन आर ए। एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन रो, रो का यूनिट क्या था ओम मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, ये हो जाएगा इसका यूनिट। एंड नाउ the series and parallel combination of the resistance. So first of all, series combination. So there are three resistance R1, R2, R3 which attached in series through a battery V and by which current is flowing I. So electric current is same in the series. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 3 बल्ब्स लगे हुए हैं अलग अलग कैपेसिटी के, 10 वाट का है, 20 वाट का है, 50 वाट का, तो जितने वाट के अलग अलग हैं उनका वोल्टेज उसी हिसाब से वो यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। सो यहाँ पर होगा V1, V2, V3, करंट सेम होगी, करंट सेम इन सीरीज, ऐसे लिख देना इन सीरीज करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट। तो देखिएगा लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 attached in the series via a battery, okay, whose potential is V and in this circuit current I is flowing. So V equals to V1 plus V2 plus V3 plus dot dot. This is first equation, but V equals to I into R. This combination is series, so this is denoted RS. V1 equals to I R1, V2 equals to I R2 and V3 equals to I R3. All these value put the equation first. So I RS equals to I R1, I R2, I R3. I हमने सबसे कॉमन कर दिया, so सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ऐसे अटैच होगी। लेट 3 रजिस्टर्स whose resistances are R1, R2, R3 attached in the parallel in this way by a battery whose potential is V. So I current flowing through it, and here I splits in 3 parts, I1, I2, I3, okay, but potential is remain same। अगर ये दोनों रोक दिए जाएं तो टोटल पोटेंशियल इससे जाएगा, अगर ऊपर वाले और नीचे वाला रोक दिया जाए तो पूरा पोटेंशियल इससे होके जाएगा, ऊपर वाले दोनों स्टॉप कर दिए जाए तो टोटली पोटेंशियल इससे होकर जाएगा, मतलब सभी में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो इन दिस वे वोल्टेज I करंट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ये हो जाएगी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और I की वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं, I इक्वल टू V बाई R, और ये पैरेलल में सिर्फ RP, I1 V बाई R1, I2 V बाई R2 एंड I3 V बाई R3। उसी R इक्वल टू V बाई I से फॉर्मूले से सॉल्व किया है। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू V बाई RP, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। सो हमने तीनों से क्या है, V कॉमन ले लिया, सो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया फॉर्मूला। ओके, so in this way we will solve the parallel equivalent resistance in parallel combination। अब देखिएगा हमने सीरीज एंड पैरेलल में कुछ कॉमन सी चीजें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, सीरीज और पैरेलल में क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से था,
अगर ये 2 रजिस्टर्स हैं ऐसे, तो इनका आर एस हो जाएगा R1 प्लस R2 और RP हो जाएगा, देखिए 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RP इक्वल्स टू R1 R2/R1 प्लस R2। तो देखिएगा, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सीरीज। इफ वी ऑब्टेन maximum resistance, then combination will be series. And second, if minimum resistance, then combination will be parallel. देखिएगा, इसमें फ्रैक्शन में आ जाते हैं, 1/, में आ जाते हैं। तो अगर हमें मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस लाना है तो किस में कर देंगे, पैरेलल में कर देंगे। अगर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाना है तो किस में ऐड करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो और दोनों इक्वल हो, R1 R2 इक्वल है, तो RP क्या हो जाएगा, R इंटू R/R प्लस R2R, सो R/2। तो डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, ऐसे इसमें तो क्या हो जाएगा, सीरीज में देखिएगा R प्लस R डबल हो गया और पैरेलल में हाफ हो गया। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 50 ओम 50 ओम है तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में 100 ओम हो जाएगा, 50 प्लस 50 सीधे ऐड होगा। लेकिन R इक्विवेलेंट अगर यही पैरेलल में ऐसे कनेक्ट होते, ऐसे 50 ओम 50 ओम, तो कितना हो जाता, 50 है तो उसका इक्विवेलेंट किया क्या आ जाएगा, 50 का हाफ, यानी R इक्विवेलेंट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, सो 25 ओम आ जाएगा। डायरेक्ट आप इनसे कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व सिंपली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स व्हाट एवर बी रिलेटेड टू द resistance, electric current, potential and resistance, Ohm's law, we will discuss in the next class. Okay, thank you.